Good afternoon, students. Today we are going to start with our next topic of chapter number 2. Our chapter is plant structure and function. So we have already in previous lecture we have learned about the part of the stem and the parts of the leaf. Hope you remember and you are studying. Now next we'll start with parts of flower. As you can see here, our next topic is flower. Now what are the different parts of the flower? We'll see it today. We'll learn it today. Flower, you already know about flower. Many types of flower, many type of colorful flowers you have seen, like sunflower, mogra, and rose. You're really familiar with all these type of colorful flowers, lotus. Now what part does this flower consist of? What are the different parts of the flower? Today we are going to learn about that. Now as you can see in this picture, the flower is divided into different parts and the different names are given to the different part of the flower. So today we are going to learn about that. Now the picture of the flower which you are seeing here, this picture is a vertical section of hibiscus flower, which this flower is a hibiscus flower. Now we'll start from this lower part of the flower. This stalk like structure you see of the flower is called as pedicel. As it is written here, this is called the pedicel. The one end of the pedicel, this end of the pedicel is attached to the stem. This is attached to the stem, and the other end, this upper side of the end, this, as you can see here, this is swollen. This swollen part, swollen means expanded, or like this you can say. Now this part is called as receptacles. The downward part, this part is called as pedicel and this part is called as receptacles. Now these receptacle, it gives supports to the other part of the flower. For example, the petals and the single petals of the flower and the other part of the flower. If you see, these all the petals of the flower is based on or is supported by this green colored part. So this green colored part is called as receptacle, which support all these part of the flower. Now what are petals? You know petals. As you can see here, this single part of a flower is called as petal. This is the petal in Hindi. So this colorful part of the flower is called as petal. So these petals are supported by these swollen part. This swollen part is called as receptacles. Now hope you have understood a few parts of the flower. Now many other part of the flower are present over here, like calyx, filament, anther, style, stigma and corolla. Now we'll one by one see all in details about all these part of the flower. Now first we'll see about calyx. What is this calyx? This green color part, if you see, it is called as calyx. Now what is this calyx? When the flower is at the starting stage of its growing, in the starting stage the flower is closed. If you have ever noticed the newly formed flower, it first form bud. पहले जो flower रहता है वो bud के form में रहता है, close रहता है, क्लोज ऐसे छोटी सी कली रहती है फ्लावर की. देयर इज कॉल्ड एज अ बर्ड ऑफ द फ्लावर. तो वो बर्ड जो रहता है एक ग्रीन कलर की लीफ से कवर्ड रहता है. वो ग्रीन कलर की लीफ जब फूल बड़ा हो जाता है, द फ्लावर when flower grows then it becomes calyx. So that part is called as calyx. ये पहले फूल जो फ्लावर जो रहता है ये पूरा कैलिक्स में कवर्ड रहता है. फिर जैसे ही फ्लावर ग्रो करता है तो वो क्या बन जाता है, कैलिक्स बन जाता है. वो ग्रीन कलर की लीफ, उसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स बोलते हैं, उसको सेपल्स बोलते हैं. फ्लावर जो रहता है जब बंद रहता है वो सेपल्स में कवर्ड रहता है. फिर जब फ्लावर ग्रो हो जाता है इस तरीके का, तो वो सेपल्स जो रहता है वो कैलिक्स बन जाता है. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कैलिक्स.
और इससे पहले हम लोग ने पढ़े हैं रिसेप्टेकल्स, जो ये पार्ट है कैलिक्स के नीचे वाला, ये जो स्वोलन पार्ट है, स्वोलन मतलब थोड़ा सूजा हुआ जो पार्ट है, ये पार्ट जो रहता है वो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स को सपोर्ट करता है। दूसरे पार्ट यानी ये जो फ्लावर की पंक्ति आप यहाँ यू कैन सी ओवर हियर, दीज पेटल्स आर सपोर्टेड बाय दिस पार्ट, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिसेप्टेकल्स। और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कैलिक्स। नाउ देर आर many other parts of the flower. The next one is corolla. This it is written over here, corolla. ये corolla जो है it is made from the petals of the flower. जो एक एक पंक्ति होती है फ्लावर की, that is called as petals of the flower. वो petals जो है ये petals को मिलके ये corolla बनता है, that is called as corolla. ये corolla जो है ये कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। As you can see here the petals are colorful. तो ये all these petals made up the corolla. अब डिफरेंट फ्लावर के देखोगे तो डिफरेंट कलरफुल कलर दूसरे दूसरे कलर्स होते हैं। सनफ्लावर के देखोगे तो उनके पेटल्स अलग कलर के, येलो कलरफुल येलो होते हैं, रोज़ के रेड होते हैं, रोज़ के और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, पिंक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, डिफरेंट कलर्स। सो corolla is bright and colorful part is called as corolla. Now next इसके पार्ट है as you can see here एंड्रोशियम। नाउ ये एंड्रोशियम पार्ट जो है, एंड्रोशियम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड्रोशियम जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम किससे बना हुआ होता है? एंड्रोशियम स्टेमिन से बना हुआ रहता है। एज यू कैन सी हियर इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेमिन, और स्टेमिन में दो चीज़ें रहती है। स्टेमिन में कौन कौन सी चीज़ें रहती है? एंथर एंड फिलामेंट, दिस टू पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन। ये दोनों पार्ट को मिलाकर स्टेमिन बनता है। स्टेमिन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज एंड्रोशियम। एंथर, एज यू कैन सी हियर दिस येलो कलर्ड पार्ट, येलो कलर्ड डॉट लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इसको एंथर बोलते हैं। एंड फिलामेंट, ये जो लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कांट सी इट क्लियरली, लेकिन आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक निकालो और उसमें देखो, यू कैन सी इट क्लियरली। लॉन्ग हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, एंड दिस राउंड स्ट्रक्चर डॉट जैसे स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड एज एंथर। ये दोनों मिला के क्या बनता है? स्टेमिन बनता है। नाउ दिस we have talked about the male reproductive part. Now next we are going to talk about the female reproductive part, that is gynoecium. गाइनोशियम जो है वो किससे बना हुआ होता है? कार्पेल से बना हुआ होता है। एज यू कैन सी इट हियर, इट इज़ रिटन ओवर हियर, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्पेल। अब कार्पेल में दो चीज़ें हैं, दिस स्टाइल एंड स्टिग्मा, दीज टू थिंग्स मेक अप द कार्पेल, और ये कार्पेल जो है वो गाइनोशियम बनाता है, विच इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ दिस स्टाइल, एज यू कैन सी हियर, दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टाइल, और ये जो ऊपर के राउंड स्ट्रक्चर्स है इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा का एक और क्लियर पिक्चर यहाँ फर्स्ट वाली पिक्चर में दिया है, आई विल शो यू। एज यू कैन सी हियर स्टिग्मा जो है ये पार्ट अलग करके बताया, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, and see anther also, this yellow structure you can see that is called as anther. So hope you have understood all the parts of the plant very clearly. So you have to learn all the spellings, learn the name of the part of the flower. In the last paragraph of your this part of the flower, last paragraph में reproduction of the process of reproduction or the production of fruit, how a fruit is formed, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पार्ट्स इसमें पढ़े। एंथर और फिलामेंट जो है वो स्टेमिन के पार्ट है, जो एंड्रोशियम का पार्ट है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
स्टिग्मा और स्टाइल जो है ये दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दिस येलो कलर स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर जो है ये एंथर्स, राउंड स्ट्रक्चर्स एंथर, ये एंथर जो है मैच्योरिटी के बाद एक टाइम के बाद जब ग्रो हो जाते हैं, ग्रो होने के बाद ये एंथर जो रहता है वो फूट जाता है। एंथर फूटने के बाद इसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, जो पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं वो एयर के थ्रू ये जो स्टिग्मा है स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होने के बाद ये लोग यहाँ से स्टिग्मा से अंदर एंटर करते हैं इस ट्यूब में। ये ट्यूब में एंटर करने के बाद ये जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी, एज यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। ये ओवरी जो है, ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स। वो पोलन ग्रेन्स जो यहाँ से एंटर किए हैं, वो पोलन ग्रेन्स जो है वो ये ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद ये जो ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड बन जाते हैं, और फिर ये जो ओवरी है ये फ्रूट के फॉर्म में बन जाती है। तो इस तरीके से फ्रूट जो है वो बनता है। So now you have also understood the process of formation of fruit. Now let's move forward. Now next topic we are going to discuss about fruits. फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है फ्रूट के बारे में। अब फ्रूट्स हमको बहुत सारे पता है, जितने भी फ्रूट्स आप लोगों ने देखे होंगे सारे डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप और डिफरेंट टेस्ट के होते। सारे फ्रूट का टेस्ट डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, वो लोग के अंदर जो सीड्स रहते हैं वो डिफरेंट है। अभी ये पिक्चर में ही बहुत सारे ये जो फ्रूट्स दिख रहे यही इन लोग के ही डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट टेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, पम्पकिन हो गया, और चीकू है, एप्पल है। एप्पल्स की सीड बहुत छोटी होती है, चीकू की सीड एप्पल की सीड से थोड़ी सी बड़ी होती है, बट मैंगो की सीड जो रहती है वो और ज़्यादा बड़ी रहती है। मैंगो येलो कलर का रहता है, एप्पल रेड कलर का रहता है, सारे डिफरेंट कलर्स है, टेस्ट भी सबके डिफरेंट है। तो इस तरीके से फ्रूट में बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। ये जैक फ्रूट भी अगर आप देखोगे तो जैक फ्रूट में भी बहुत ही छोटे छोटे से ऐसे अलग अलग पार्ट होते हैं, अगर जैक फ्रूट कभी खाया होगा तो। एक और चीज़ यहाँ पर है दैट इज़ कैश्यू नट। कैश्यू जो है व्हाट इज दिस कैश्यू नट? दिस इज़ नथिंग बट इन हिंदी वी कॉल इट एज अ काजू। जो काजू हम लोग खाते हैं उसका फ्रूट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द कैश्यू नट। ये जो है उसका फ्रूट है, और जो पार्ट हम लोग खाते हैं दैट इज़ हियर, ये सीड का पार्ट है जो हम लोग खाते हैं। तो ये इस फ्रूट में, कैश्यू नट का जो फ्रूट है इसमें सीड बाहर के साइड रहती है और ये फ्रूट ऐसा रहता है। अब जो भी हम लोग फ्रूट्स नॉर्मली खाते हैं उसमें सीड्स अंदर रहती है, बट कैश्यू नट का अलग है, और इसका सीड का पार्ट जो है वो हम लोग खाते हैं। फ्रूट का पार्ट हम लोग नहीं खाते, सीड का पार्ट खाते हैं। तो ये भी इस तरीके से डिफरेंट वैरायटीज़ है फ्रूट में। हम लोग को फ्रूट के बारे में बस इतना ही पढ़ना है उसके। और एंड वन मोर थिंग इज़ गिवन ओवर हियर अबाउट द सीड ऑफ द फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स और राइस, व्हीट, जवार, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली जो हम लोग खाते हैं, और पी मीन्स दिस ग्रीन पीज। ये सारे की जो सीड्स है ये दो टाइप की होती है, डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। डाइकोटिलेडॉन्स और मोनोकोटिलेडॉन दो तरीके के होते हैं। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसकी सीड डाइकोटिलेडॉन है और किसकी सीड मोनोकोटिलेडॉन है? डाई मीन्स टू, डाई का मतलब होता है टू, और मोनो मीन्स सिंगल, वन। मोनो का मीन्स वन, यानी कि वन सीड, और ये डबल सीड। डाई मीन्स टू। अब ये जो पी है, ग्राउंडनट है, व्हीट, राइस, जवार, ये सब को अगर हम लोग, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये सब अगर हम लोग 3-4 आवर्स के लिए हम लोग वाटर में डिप करके रखेंगे, वाटर में पानी में भिगा कर रखेंगे। उसके बाद जब वो
स्वॉलन हो जाएगा, फूल जाएगा पानी से। फिर उसको हम लोग हाथ से प्रेस करेंगे तो पीस के जो दाने होते हैं वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। पी के दाने डिवाइड हो जाएंगे। ग्राउंड नट जो रहता है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो चीज़ें 2 पार्ट में एग्जैक्टली डिवाइड होती, इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होती है, वो सीड्स को हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलीडॉन्स। और जो सीड्स नहीं डिवाइड होती इक्वल पार्ट में, जैसे राइस है, राइस के चावल के जो दाने रहते हैं उसको अगर भिगाओगे और प्रेस करोगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोकोटिलीडॉन्स। और पी के जो दाने होते हैं, ये मटर के जो दाने होते हैं और ग्राउंड नट के जो दाने होते हैं वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो इसके लिए दे आर कॉल्ड एज डाइकोटिलीडॉन्स। तो ये डिफरेंस है। एक मोनोकोटिलीडॉन का एक और एग्जांपल है, दैट इज़ मेज़। जो भुट्टा हम लोग खाते हैं उसको भी अगर भिगा के रखोगे पानी में और फिर उसको भी ऐसे ही प्रेस करोगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, वो सिंगल ही रहता है, इसके लिए उसको मोनोकोटिलीडॉन बोलते हैं। और ये सारे जो पी और ग्राउंड नट है ये लोग डाइकोटिलीडॉन से। तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो और फाइंड कर सकते हो कि कौन से सीड्स जो है डाइकोटिलीडॉन से और कौन से मोनोकोटिलीडॉन से। तो ये चैप्टर में इतना ही था। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टार्ट योर स्टडीज एंड कीप ऑल द थिंग इन योर माइंड एंड रिवाइज इट।